یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ میرا نام محمد ندیم اتاری ہے، میرے بیٹے کا نام محمد کفیل اتاری ہے۔ ان کی عمر تقریباً 7 سال ہو چکی ہے، مگر یہ ہر روز تکلیف میں رہتے ہیں، ہر مسئلے میں اس کو پرابلم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ظاہر والدین ہم اس کے لیے کرتے ہیں۔ میں مجھ سے زیادہ ان کی جو والدہ ہیں وہ زیادہ پریشان رہتی ہیں، کیونکہ جتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے اتنی پریشانیاں مزید بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ کھانے پینے میں اس کو پرابلم، بیٹھنے میں پرابلم، ہر چیز میں اس کو تکلیف ہے۔ اس کو مختلف ہاسپٹل میں دکھایا گیا ہے، چیک کرایا گیا ہے، تو ہر جگہ سے یہی بس کہ آپ صبر کریں، انشاءاللہ اللہ پاک چاہے گا تو تندرستی آ جائے گی۔ مگر دل روتا ہے، کیونکہ جب یہ دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے نا کہ کھیل رہے ہیں بچے اس کے سامنے، اور یہ حسرت بھری نگاہوں سے ہنس رہا ہوتا ہے اور ہم رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری تمنا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ دوسرے بچوں کی طرح جو نارمل بچے ہیں ان کی طرح یہ کھیلے کودے، اسکول جائے، مدرسے جائے، مگر یہ ہر چیز سے ابھی محروم ہے۔ جو میجر تکلیف بتائی گئی ہے اس کو کہ یہ اس کا دماغ کمزور ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں لچک ہے، پٹھے اس کے اکڑے میں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے نہ یہ بیٹھ سکتا ہے نہ یہ چلتا ہے۔ جب اس کو کھلاتے ہیں، کچھ پلاتے ہیں، تو یہ پورے اپنی باڈی کو اکڑ جاتی ہے اس کی باڈی۔ دل تو اتنا دکھتا ہے کہ اکیلے میں رونا بہت آتا ہے، رونے کو دل چاہتا ہے، دل بھر آتا ہے، اس لیے کہ اس بچے کی کنڈیشن ایسی ہے نا، اور دوسرے بچے ہیں میرے وہ تھوڑے وہ نارمل ہے، تو جب ان کو یہ دیکھتا ہے تو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہر چیز سے قاصر ہے۔ بہت پرابلم ہوتی ہے کہ اس کو کھلانے کے لیے ایک بندہ اس کو چاہیے، اس کو پکڑنے کے لیے، دوسرا بندہ اس کو کھلانے کے لیے چاہیے۔ جب مجھے کال آئے کہ آج میرے مرشد سے میری ملاقات ہے، تو میرے جذبات تو ایسے تھے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی جو ہے نا، جیسے کال آئی ہے میں امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اپنے شہزادے کو لے کے، کیونکہ میری بہت عرصے سے تمنا تھی۔ میں نے کوششیں بھی کی کہ امیر علیہ السنت سے اپنے صاحبزادے کی میں ملاقات کروا دوں تاکہ وہ ان پہ نظر کرم کر دیں۔ میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے مرشد سے اپنے بیٹے کی ملاقات کراؤں، بس ان کی نظر کرم ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے، باقی جو اللہ چاہے گا وہ انشاءاللہ وہی ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول سلسلہ ہمدردی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ امیر سنت کے پاس والی سرپرست ان کے بھائی وغیرہ کا آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بیمار اور جسمانی حوالے سے کچھ نہ کچھ مسائل کا شکار بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، غمزدہ، پریشان حال۔ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا سلسلہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ ہم نے ہمدردی کس طرح کرنی ہے، دلجوئی کس طرح کرنی ہے، غمخواری کس طرح کرنی ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی شامل ہیں۔ حضور آپ کا نام؟ محمد ندیم اتاری۔ محمد ندیم اتاری۔ اچھا، بتائیں کیا ہوا بچے کو؟ یہ بچپن سے ہی جو ہے نا، جب پیدا ہوا تھا تو اس کے بعد اس کو یہ تکلیف ہو گئی تھی کہ اس کو آکسیجن نہیں ملا تھا، تو اس کے آکسیجن کی وجہ سے جو ہے نا اس کے دماغ پہ شاٹ لگ گیا، تو ابھی اس کی دماغی کمزوری ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ بولتا ہے، مگر سمجھ تھوڑی بہت ہے۔ مسلس ان کے کمزور ہیں، یہ پاؤں کے یہ کنٹرول نہیں ہے، کنٹرول جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے اس کے پاس۔ البتہ یہ کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں یا آدمی ہوتے ہیں ان کی عقل سلامت ہوتی ہے، بیچارے سمجھ سب رہے ہوتے ہیں، بول نہیں پاتے، بولتے اس طرح کہ عام لوگ سمجھ۔ ابھی آپ کے پاس آئے نا تو انہوں نے ہاتھ باندھے، اللہ
एज कितनी है? 7 साल है पापा जी। आप भी फिर मानने की कोशिश करो, दीवाना है ये तो। नदीम भाई बात करते हैं ये? नहीं, कुछ भी नहीं हाजी बोल साहब रहे? नहीं। सुन लेते हैं। जी जी। नाम बताओ, नाम। कुछ बोलोगे? अल्लाह अल्लाह। बोलो बोलो। अल्लाह। अल्लाह बोले अल्लाह अल्लाह। अल्लाह। कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे पीर मुर्शिद का करम है कि ये कर रहे हैं ऐसा, नहीं तो घर पे तो ये सिर्फ पप्पा पप्पा करते हैं, यहाँ तो ये कम से कम माइक तो पकड़ लिया है इन्होंने। आपने घर पे पप्पा पप्पा के साथ अल्लाह अल्लाह बोलना सिखाना नहीं है? सिखाया है ना इसको, बोला अल्लाह अल्लाह। हाँ, अल्लाह अल्लाह भी सिखाते हैं। बाकी जब मदनी चैनल देखता है ना तो पापा को प्यार करते रहता है। ऐसा कैसे है? ये देखा, अभी भी कर रहा है पापा को प्यार। क्या नाम है? मोहम्मद कफील अत्तारी। मोहम्मद कफील। बाबा बाबा मोहम्मद कफील। मेरी बहुत तमन्ना थी कि पीर मुर्शिद से इसकी मुलाकात हो, आज वो मेरी तमन्ना पूरी हो गई। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो करम भी होगा। नाम क्या बताया आपने? आपका? जी मेरा नदीम अत्तारी। नदीम। आपका नाम बेटे? मोहम्मद कैफ अत्तारी। कैफ। कफील अत्तारी। जी। माशाअल्लाह। सुन रहे हैं? समझ भी रहे हैं। हाँ, सुन भी रहे हैं। समझ भी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कोई इलाज के हवाले से कुछ आगे की उम्मीद दिला रहे हैं कोई? हाजी साहब, ये डॉक्टर ने ये कहा है कि ये अभी बच्चा जैसे 7 साल का है ना, तो आप ये समझिए 2 साल की उम्र में ग्रोथ पीछे है इसकी। अच्छा। इसका दिमागी मसला है और इसकी कोई दवाई भी वगैरह मकसद इन्होंने कोई मखसूस नहीं की हुई। इसको दवाई पिलाते रहे कि बोले इसको दवाई की भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह ये खुद ही सही हो जाएगा। मैंने सब जगह हॉस्पिटलों में, जो बड़े हॉस्पिटल है पाकिस्तान के, उसमें दिखाया। यहाँ तक कि माशाल्लाह ये जो है ना अपने ख्वाजा गरीब नवाज को मज़ार पे हाजिरी दे चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ताल्लुक इनका ननियाल का ताल्लुक बरेली शरीफ। बरेली शरीफ। बरेली शरीफ से। अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह। तो सरकार आला हज़रत के मज़ार पर भी हाजिरी दी होगी बरेली शरीफ में। कफील भाई खुश हो रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई। अब इस तरह के जो बच्चे हैं, हमने कभी एक दफ़ा सोचा था कि हम दारुल मदीना इस तरह का हम कायम करें जिसमें इस तरह के बच्चे अगर दारुल मदीना में पढ़ने आए तो उनके लिए क्या अंदाज होना चाहिए। अब दारुल मदीना मिसाल के तौर पर अगर खोल भी लें तो ये नदीम भाई किस तरह समझते हैं बच्चे? ये तो देखो, जो पढ़ाने इनको तरबियत करने वाले होंगे, ये उनकी तरबियत होगी और वो अपनी तरबियत के मुताबिक है इनको संभालेंगे। ये हम तो नहीं करेंगे बेटे बेटे, ये कैसे इनको संभालेंगे? अभी हाजी साहब ये जो ना इसको संभालने वाला एक होना चाहिए, बगैर इसके सहारे के बैठ नहीं सकते। अब ये आजमाइश है घर में। हाँ, ये तो आजमाइश तो जैसी तैसी है। अभी हंस बोल रहे, लेकिन इनका दिल जानता होगा। मेरे होठों का तबस्सुम तो तुमने देख लिया, जो दिल पे बीत रही है वो कोई क्या जाने। तो वो हंसते बोलते भी रहना चाहिए। बाबा इतनी देर से मैं इतना देख रहा हूँ कि अब खांसी तो आपको आ रही है, मैं आपके साथ इयादत करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। वो जो दिल पर बीत रही है वो अपनी जगह, वो खांसी नजर आ रही है वो। मगर ये दिल पर कुछ बीत नहीं रही थी खांसी की। हाँ। वैसे मैंने तो इनका समझो एक इनके तर्जुम। हंस किया। लेकिन ये इस तरह सब्र कैसे है घर में? बार बार बच्चे को देख देख कर जैसे या तो आदी हो जाएगा या सब्र आ जाएगा या फिर शिकवा शिकायत करता रहेगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नजर रखे, जो सब्र करना चाहेगा अल्लाह पाक उसे सब्र की तौफीक अता फरमा देगा, और सब्र से बेहतर और वुसअत वाली अता इसी पर नहीं की गई। अब ये कि सब्र करना चाहेंगे तो अल्लाह अता कर देगा सब्र। अब सब्र करना नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वो किसी ने कहा ना, चुप रहे सीता मोती मिलसन, जे सब्र करे ता हीरे। ये पागला मांगो ला पावे ना मोती ना हीरे। तो अब ये कि हर एक को कहता फिरे और बड़बड़ बड़बड़ करता रहे बंदा, तो ज़ाहिर है मुसीबत तो इससे जाएगी नहीं। बेसब्री की वजह से सब्र के जरिए हाथ आने वाला जन्नत का खजाना हाथ से निकल सकता है। बल्कि वो अगर बेसब्री पाई गई तो ज़ाहिर है कि वो अज्र का तो हकदार रहा नहीं।
صبر کے اجر کا، تو اس لیے وہ صبر ہی کرنا چاہیے. احیاء العلوم میں ہے حضرت سیدنا داود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، جو غمزدہ شخص تیری رضا کے لیے مصیبت پر صبر کرے اس کی کیا جزا ہے. ارشاد فرمائے میں اسے ایمان کا ایسا لباس پہناؤں گا جو کبھی نہ اتاروں گا. یہ اگر ایمان کا لباس کبھی نہ اترنے والا نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. ایمان کی کسی کو ایسی نعمت مل جائے، ورنہ تو کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے گا یا نہیں. وہ صبر کیا آپ جو فرما رہے ہیں، صبر یعنی کہ ایک شخص اپنی جو بھی پریشانی مصیبت ہے وہ اگر کس کا پورے کے پورا وہ اظہار بھی کرے، بیان بھی کرے، اب آپ کو کیا پتا ہوں میں کیسے کر رہا ہوں، کیا ہے، بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے، بچہ یوں بھی کر رہا ہے، بچہ یوں بھی کر رہا ہے، اور اب کوئی مطلب آپ جیسی شخصیت کہہ دے گا اب دیکھیں نا اب آپ کو صبر کرنا چاہیے، تو اگلا بولے گا اب کیا کریں حضور، صبر کی سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے نا. تو یہ صبر ہے یا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اپنی اس تکلیف کو کسی پر ظاہر نہ کرے، کسی کے آگے بیان نہ کرے، بلا حاجت. بلا حاجت. جہاں حاجت ہو وہ دوسری بات ہے. تو اب یہ کہ اگر اس نے بلا ضرورت کسی کے آگے، یعنی بلا مصلحت جس کو کہہ لیجئے، کسی کے آگے تذکرہ کیا، اب یہ کہ وہ صبر سے نکل گیا. اور اگر ضرورتاً کیا، مثلا ڈاکٹر کے آگے اپنے بچے کا یا اپنے مرض کا اظہار کیا، تو یہ ظاہر ہے کہ بے صبری نہیں کہلائے گا، حاجت ہے. حاجت. اسی طرح کسی نے دعا کروانی ہے، تعویذ لینا ہے، دم کروانا ہے، تو اب اس کو بتایا کہ یہ تکلیف ہے، آپ دعا کر دیں، تو یہ بھی مطلب بے صبری نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. بلا ضرورت ہمارے یہاں بلا ضرورت بتانے کا رجحان تو بہت زیادہ ہے، عام طور پر بلا ضرورت ہی بولتے رہتے، وہ ہے نا زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. اس لیے شکوہ شکایت کسی سے بھی نہ کرے، یعنی کسی کو اپنی پریشانی بتانا بلا وجہ، یہ گویا ایسا کہ جیسے دیکھو اللہ نے مجھے یہ پریشانی دے دی، میری یہ مجھ پر یہ مشکل ڈال دی معاذ اللہ، اگرچہ اس کی یہ نیت نہیں ہے، اس لیے بچت تو بہت ہے اس کی، لیکن یہ ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے، ناجائز نہیں ہے. بلا ضرورت اگر اظہار کیا تو ناپسندیدہ ہے. ابھی کا ایک اجر سے محرومی کی صورت بنے گی نا اس نے بلا ضرورت بول لینی ہے، بڑا مشکل. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ باپ زیادہ صبر کر لیتا ہے یا ماں؟ کبھی ماں کبھی باپ. کہ ماں کو زیادہ اس میں آزمائش ہوتی ہے، باپ تو بیچارہ ہو سکتا ہے کام دھندے پر بھی جاتا ہوگا، ادھر ادھر دوستوں میں بھی بیٹھتا ہوگا جا کے، ماں گھر میں ہوتی ہے عام طور پہ اور بچہ سنبھالتی ہے دن رات. ماں کو زیادہ تکلیف. کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ ماں کو نہلانا دھلانا ابو تھوڑی کریں گے، امی ہی تو کرے گی، جی جی اس کو تکلیف ہی تکلیف. جی ہم تو یہ کام نہیں کرتے نا، جیسے نہلانا پلانے کی، اور یہ لیٹ کے نہاتے ہیں بیٹھ. بیچارے کپڑے بھی خراب ہو سکتا ہے کر دیتے ہوں گے. اور یہ بتا 7 سال ہے، 7 سال. یہ اشارے سے بتا دیتے ہیں جو جس چیز کی حاجت ہوتی ہے نا، جی جی کھانے کی، پینے کی، یا کوئی دوسری پیشاب وغیرہ کی بول نہیں سکتا، بول نہیں سکتے، اشارے سے سمجھاتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ مجھے یہ ضرورت. اگر آپ اشارہ نہ سمجھو تو اس کا نہیں ہم تو سمجھ جاتے ہیں نا، سمجھ جاتے جی، کیونکہ ہماری روٹین میں ہے نا یہ. اس کے بعد سمجھانے کے اور بھی طریقے ہوتے ہوں گے. یہ دونوں لڑتے ہیں، اس کو ذرا سمجھاؤ، یہ لڑتا ہے اس سے کہ چھوٹا ہے یہ بچہ، اس کا کیا حال ہے؟ نارمل ہے. ہاں نا. اس کا کیا حال ہے؟ اب اس کا جیسے یہ اب یہ کہتا ہے کہ میرے کو یہ مارتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ بولتا ہے. تو مطلب یہ کیا مارے گا بیچارہ نا، ایسے تمہارے ہاتھ لگ جاتا ہوگا تو یہ غصہ کرتے ہیں. اس کا بھی پاپا جی کوئی مدنی پھول عطا فرمائے. پہلے اس کو پوچھتے ہیں، بیٹے کیا نام آپ کا؟ محمد کیف. محمد کیف. اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ والد صاحب نے میری جو یہ شکایت کی، تو اب آپ خوشی سے جھوم رہے ہیں، دل میں اچھا لگا، کیا مزہ آ گیا،
झूम गए, क्या 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 हुआ, कैफियत क्या हुई? बताएं बापा जी। जो जो कैफियत बताओ, इस पर आपको कोई नहीं बोलेगा, सब कुछ नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। बापा हैं। अच्छा लगा या बुरा लगा? बुरा लगा। बुरा लगा। तो वाली साहब ने आपको मारा तो नहीं? मैंने आपकी शिकायत सबके सामने क्यों लगाई, ये बुरा लगा, या मेरे सामने क्यों लगाई ये बुरा लगा, या दोनों से बुरा लगा? या अकेले में बोलते तो कम बुरा लगता, सबके सामने बोलते तो ज्यादा बुरा लगा, और अब अगर ये मदनी चैनल पर चल गया तो ज्यादा बुरा लगेगा? फिर तो वालिद साहब से लड़ाई करनी पड़ेगी। नहीं, पहले तो ये कि जब भी जैसे कि इस्लाह करनी हो तो उसका तरीका ये होता है कि उसको सबके सामने ना समझाया जाए, अकेले में उसकी इस्लाह की जाए। बाज़ वक़्त शरई तकाज़ा ऐसा होता है कि सबके सामने समझाना पड़ता है, कोई ऐसी शरई गलती वो करता है कि फौरन उसको तौबा करवाई जाए, वो एक दूसरी बात होती है। इस तरह के मसाइल जो है ना, बच्चे लड़ते हैं, माँ से लड़ता है, बाप से लड़ता है, हमारी नाफरमानी करता है, इस तरह की शिकायत अगर किसी के सामने, मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि बच्चा बुलाएंगे, बड़ा बच्चा होगा, इसको नसीहत करो, ये अपनी माँ को बहुत तंग करता है। तो मैंने बोला अब भी ये क्या मेरी नसीहत सुनेगा, उसको मेरे सामने आपने डिग्रेड कर दिया, अब तो शायद ये मजीद तंग करेगा। तो मुझे कट में आप बोलते थे, कान में बोलते थे, लिख कर, तो मैं अपनी हिकमत अमली से इसको नसीहत करता। तो ये सबके लिए मदनी फूल है नाज़रीन, कि कभी भी किसी के बड़े बूढ़े घर के होते हैं या कोई इमाम साहब है तो उनके सामने, बच्चे के सामने ना क्या करेंगे, ये तंग करता है। अभी आपने बाबा जैसे मैंने अभी आपको सैंपल दिखाया, बोला ना तो मुझे बुरा लगा, मेरे वालिद साहब ने यूं सबके सामने काय को बोला, तो ये वरना ये कभी नहीं बोलेगा कि मुझे बुरा लगा बच्चा। ये दिल ही दिल में उसके अंदर एक नफरत का बीज, और एक नफरत की जड़ें उसके अंदर उस्तवार हो सकती हैं जो कल जाकर नुकसान पहुंचा सकती है, और ये इसकी दिल आजारी भी होगी। तो अब ये कि बेटे या छोटे बेटे की दिल आजारी माँ बाप करे और माफी मांगे उससे, ये इलियास कादरी तो कर सकता है। हाँ, मैं तो माफी बारहा मांगी है अपने बच्चों के, जैसे कि बालिग हो गए, नाबालिग बच्चा माफ करने पर माफ करेगा तब भी नहीं होगा, बालिग बच्चों की तो बारहा माफी मांगता हूँ, अब भी मांगता हूँ, अभी तो मांगता है। आम आदमी थोड़ा इसमें वो शर्म महसूस करेगा, झिझक महसूस करेगा, शैतान उसको वसवसा डालेगा तो तू माफी मांगेगा तो सर पे चढ़ जाएगा, सर पे नहीं चढ़ेगा, कदमों में आएगा। अब करके तो देखो यार इंशाअल्लाह। तो बहरहाल लेके अब कैफ भाई, बेटे माँ बाप की इताअत जरूरी है, फरमाबरदारी जरूरी है, और छोटे भाई बहनों पर शफकत भी जरूरी है। हदीस पाक में है कि जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता और छोटों पर शफकत नहीं करता वो हम में से नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया कि आपका छोटा भाई है, इसका अदब है, इस पर शफकत फरमाते रहे। ये बेचारा क्या अदब करेगा, इसकी तो पोजीशन ही आपके सामने, जब ये और बड़ा होगा तो इंशाअल्लाह अदब भी करेगा। इसलिए इंशाअल्लाह प्यार करेंगे, और ये अगर कभी हाथ हो तो उठा भी लेता तो है। 7 साल उम्र है, आप तो मेरा ख्याल है मुझे 14 साल 15 साल तकरीबन बापा 12-13 साल। 12-13 साल। हाँ, तो फिर भी ये आपसे छोटे और आप नॉर्मल, अल्लाह का शुक्र है बेटा इस पर, वरना ये इनको एहसास महरूमी हो जाएगा, दिल में दुश्मनी हो जाएगी, बुग़्ज़ हो जाएगा, ये भी गुनाहों में पड़ेगा। और आप भी अगर इस तरह नाहक कोई ज्यादती करेंगे तो समझ सकते होंगे शायद, ये भी अगर बालिग हैं तो गुनाह की सूरत होगी, और नाबालिग भी अगर जुल्म करे, बंदे की हक तलफी करे तो उसकी भी पकड़ तो है। बच्चों की यहाँ भी जेलें होती है। इन्हें कहा जेल का आपका मसला नहीं है इस वक्त, मैं एक जनरल बात करता हूँ कि बच्चा जुल्म करेगा तो पुलिस भी उसको पकड़ेगी। जैसे बच्चा किसी माज़अल्लाह किसी को कत्ल कर दे तो पुलिस थोड़ी उसको छूटा छोड़ेगी, भले ना वो 5 साल का हो, उठा के बंद तो करेगी ना। तो इसलिए बेटे वो आप प्यार दें, शफकत दें, ठीक है। चलो ये आप अपने हाथ से इनको तोहफा दें। क्या नाम? मोहम्मद कफील। कफील। कफील को तोहफा बापा से लेंगे, बापा से, मैंने बापा से लेंगे। नहीं आप तो नहीं, पापा से। इससे अब केफ का मजीद दिल टूटेगा। ले लो आयशा, बोलो जज़ाकल्लाह।
आप भी। तो यहाँ मैं आपसे कुछ समझना भी चाह रहा हूँ और इस जरिए इंशाल्लाह इस्लामी भाई तक भी फ़ायदा पहुँचेगा कि जैसे भी आपने कैफ साहब को मदनी फूल अता फरमाए, तो अब यहाँ जैसे कि मैं हूँ, मेरे बच्चे की उम्र बाबा 20 साल या 25 साल की है, मेरी उम्र तरीके से 50 साल की। अब मैं ये चाहूँ कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, मेरा ये 20 साल का या 22 साल का 25 साल का बच्चा ऐसा ही सोचे, जैसे मेरे तजर्बात और जैसे मेरे जज्बात हैं, ऐसे मेरे 17 साल 18 साल या 20 साल के बच्चे के भी वही जज्बात होने चाहिए। अब अगर जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे मेरे बच्चे पर गुस्सा आएगा, यार तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, देखो मैं भी तो कर रहा हूँ। क्या तो वालिद का क्या ये काम नहीं है कि वालिद साहब ये देखे कि ये जो मेरा दूसरा बच्चा है ये 20 साल का या 25 साल का या 15 साल, तो 15 साल या 20 साल की उम्र के बच्चे की सोच, उसका सब्र और इस मामले में कुर्बानी देना, बर्दाश्त करना, इस हवाले से इसमें और उसके बड़ों की सोच में क्या फ़र्क होता है। अगर ये चीज़ें हम समझ जाएं तो शायद हो सकता है कि हमारे दूसरे बच्चों पर हमारी शफ़क़तें बढ़ जाएं और उनसे हमारी दिल बर्दाश्तगी जो है वो कम हो जाए। कि उम्र में फ़र्क है ना, 70 साल का वालिद ये सोचे कि मैं 70 साल में जो चीज़ कर रहा हूँ मेरा 40 साल का 30 साल का बच्चा वो करे, तो वो देखे कि मैं जब 30-40 साल का था तो मेरी क्या कैफियत थी। तो बाद औक़ात उसको ये रियलाइज़ होता है कि मेरा बच्चा मेरे से बहुत आगे है। जब मैं 30-40 साल का था तो मैं तो ये भी नहीं करता था जो आज मेरा बच्चा कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है कि अगर वालिद साहब या माँ अपनी बच्चे या बच्ची के बारे में ये सोच पैदा कर ले, तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बसा औकात वालिदैन जो है ना बाबा, वो अपनी उम्र के हिसाब से अपने बच्चों पर तवक्को रखते हैं कि यार तुम ऐसा क्यों नहीं करते, देखो हम भी तो करते हैं, मगर वो ये नहीं देखते कि बच्चे की उम्र अभी कम है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये उम्र का जो फ़र्क है, तजर्बे का जो फ़र्क है, तो इसी के मुतालिक बहुत सारे फ़र्क पैदा हो जाते हैं। अगर वालिदैन अपनी औलाद के बारे में ऐसा भी सोचें। बहुत पिछले कुछ अरसे पहले मैंने एक सिलसिला किया था नौजवानों के मसाइल, उसमें जो नौजवानों ने एक बातें बयान की तो ये थी कि हमारे वालिदैन हमारी बात समझ नहीं पा रहे, हमारे वालिदैन हमसे मतलब वो हमारे लेवल पर आकर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बस वो यही है कि बस जो कह दिया वो कह दिया, बस तुमको समझ नहीं पड़ती, तुमको तजर्बा नहीं है, तुमको ये नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में एक जुमला कहा जाता है जनरेशन गैप, यानी ये जनरेशन है, यानी एक बाप और बेटे के दरमियान एक उम्र का फ़र्क जो है ना, तो एक नस्ल का फ़र्क हो गया है ना, एक पूरी एक वो गैप की वजह से दूरी हो गई है। ऐसे में आप औलाद के लिए भी कुछ मदनी फूल अता फरमाएं और वालिदैन के लिए कुछ मदनी फूल अता फरमाएं। माशाल्लाह इस मामले में उम्मीद है कि आपके मदनी फूलों से बहुत फ़ायदा होगा। आपने जो कुछ फरमाया ना, वो मदनी फूलों मदनी गुलदस्ता है। मैं दरअसल कभी से सोच रहा हूँ कि मैं ये बात कहीं भूल न जाऊँ कि ये जो हमने ये जो कैफ और नदीम भाई के और जो ये सब डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बातें सब आ गई मदनी चैनल पर इनको सदमा बहुत होगा। अगर इनकी इजाज़त हो, खानदान वाले, मिसाल देता हूँ, अब जैसे इनकी इजाज़त हो, क्योंकि यहाँ तो कैफ साहब की तो आपने लिए साइट, इन्होंने कैफ साहब की है शिकायत, मगर आपने इस शिकवा शिकायत और साइड में एक बहुत बड़े तबके तक एक रहनुमाई की बात पहुँचाई है। अगर इस वक्त जैसे कि ये हैं नदीम भाई हैं, नदीम भाई, क्योंकि अभी कफील भाई का तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है, तो समझ भी बात समझ थोड़ी बहुत तो पड़ गई। जी जी। अब ये नाबालिग, अब इनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आपने तो इनकी साइड ली है ठीक ठाक और समझाया भी है, दोनों चीज़ें हुई हैं। लेकिन अगर इनको मिसाल के तौर पर इस वक्त कोई कलाम नहीं होता कि ठीक है ये चल जाए और हमारे इस पूरे सिलसिले से उम्मत तक फ़ायदा हो, क्योंकि ये जो हम जो बाबा इस तरह के जो बच्चे आपके साथ जो बिठा रहे हैं, इसकी एक वजह यह है कि इस तरह के बच्चों के जितने भी दुनिया में हज़ारों लाखों वालिदैन हैं, उन तक हम आपके ज़रिए पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमें अपने औलाद के बारे में क्या ज़हन रखना चाहिए और क्या चीज़ होनी चाहिए। तो इसी तरह जिस तरह कैफ और कफील का जो मामला हुआ, अब ये मामला सिर्फ नदीम भाई के घर का नहीं होगा, ये मामला कईयों के घरों का होगा और भाइयों में इस तरह की चीज़ें होती होंगी, बहनों में होती होगी। तो अगर आपका ये समझाना ऑन एयर हो जाता है और उम्मत को फ़ायदा पहुँचता है और होती है नदीम भाई की इजाज़त, तो मेरा ख्याल है कि फिर इस पर गौर के। नदीम आप क्या फरमाते हैं? जी बिल्कुल, इससे हाजी साहब फ़ायदा होगा।
होगा आपको सदमा, आपको देख ये बातें आएंगी टीवी पर, नदीम भाई ने कैफ भाई के बारे में कहा तो अमीर सुन्नत ने नदीम मगर भाई को दूसरे मुंह छुपाएंगे, ऐसा भी तो होगा कि हम भी तो ये धंधे करते हैं। इमाम साहब को जाकर बेटे का बोला ही था ना साथ ले जाकर इसको तो समझ, नदीम भाई चलने दे फिर। जी जी। चुटकुला याद आ गया, मदनी मुज़ाकरा था, तो मैंने पूछा हज किसको बोलते हैं, हज की तारीफ क्या है, तो वो शायद खुद हज किया था उन्होंने, तो बोले मैदान वकूफ अरफा, मैदान अरफात में जो वकूफ होता है ये हज होता है। और फिर बेचारे मजीद वजाहत करने में फंस गए कि मैदान अरफात की फजाओं में से जो गुजर जाए, अगर कबूतर गुजर जाए, परिंदा गुजर जाए तो उसका भी हज हो गया। तो मैंने कहा इसका मतलब हाजी कबूतर, हाजी चिड़िया जो गुजरे सब हुज्जाज किराम हो गए। अब वो एक माहौल तो बड़ा खुशगवार हो गया। अब वही बात कही, हम इनका हम ऑनर करेंगे तो विचारों का मजाक उड़ेगा। तो उनको पूछा कि भाई इससे दिलचस्पी रहेगी नाज़रीन की, उन्होंने भी इजाजत दे दी थी। तो यहाँ सिर्फ दिलचस्पी नहीं है, वो दिल उसमें मालूमात तो उसमें भी थी कि अगर परिंदा गुजरे तो वो हाजी परिंदा थोड़ी बन जाएगा। मुसलमान हो ये शर्त है, गैर मुस्लिम गुजरेगा तब भी नहीं होगा। फिर हज का एहराम शर्त है, बगैर एहराम क्या गुजरेगा, रात दिन पड़ा रहेगा 9 तारीख को, कोई भी उसको हज का सवाब नहीं मिलता, ना वो हाजी बनेगा। एहराम शर्त है। एहराम होते हुए बगैर नियत के भी अगर वो जैसे मरीज है, बेहोश है, तो हज का एहराम मान दिया, बेहोश हो गया, हज का वक्त आया, उसको मैदान अरफा से गुजार दिया, उस वक्त में 9 ज़ुल्हिज्जा की ज़ोहर से लेकर 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक के दरमियान, तो उसका हज तो हो जाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला हमदर्दी आप देख रहे हैं, और अल्लाह करे कि हमें भी गमखारी, हमदर्दी, दिलजोई और इस तरह की खूबसूरत चीज़ें, इससे सवाब बहुत है। और एक हदीस पाक में है कि फ़राइज़ के बाद सबसे अफजल इबादत मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। तो इस तरह जब आप किसी के साथ गमखारी करते हैं तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके इस कलिमात से, आपके अंदाज से उसके दिल में खुशी भी दाखिल होती है, उसको कल्बी राहत भी नसीब होती है। यादत व ताज़ियत में भी सामने वाले के दिल में एक राहत और उसके जहन को एक सुकून मुहैया करना भी एक मकसद होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ मनाजिर आपने देखे हैं, अल्लाह करीम इन कोशिशों को भी कबूल फरमाएं। अमीर साहब अर्ज़ करूँगा बाबा कफील साहब तो दम भी कर दें। माशाल्लाह ये भी प्लस है, ये हसमुख है, जी जी। कुदरती तौर पर ये इसको सादत, पापा मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। सादत देखो कैफ के सामने मुस्कुरा रहा है। देखिए भाई भाई की यूं तो मोहब्बत होती है। आपने इसको दम किया है ना, तो ये इसको दिखा रहा है कि पापा ने मुझे दम कर दिया, तो आप भी करवा लें दम। अब कैफ भाई अब शफकत नहीं है, अब ये मारे तो अब भी प्यार ही देना, बेटा गुस्सा नहीं करना, सब्र कर, बेचारा है तकलीफ में, समदर्दी कर। अब हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में हाजिरी, तो मदनी काफिले में सफर की तरकीब, माह रमजान मुबारक में एहतिकाफ की कोई सूरत हो जाए पूरे माह के, या कम से कम 10 दिन के इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे दिल की कैफियत ही कुछ और है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे पे भी मेरे पीर मुर्शिद ने दम किया है। जो तकलीफ़ थी, जो परेशानियाँ थी, वो काफ़ी हद तक मेरे अंदर से फीलिंग कर रहा हूँ कि दूर हो गई। माशाल्लाह इन्होंने ईदी ली है बापा के हाथों से, ये बहुत खुश है।